हार्ड। इस पाठ में हम लोग क्या सीख रहे हैं बताइए। एक गर्ल विथ ए बास्केट है ना, यही शुरू है, प्रोज है। तो इसमें क्या सीख रहे हैं मालूम? एक लाइन सुनी होगी आपने, जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पश निरा है और मृतक समान। वह नर नहीं है, साक्षात पशु है। यही तो पढ़ रहे हैं इसमें, नहीं? ए गर्ल विथ ए बास्केट, यानी पाठ लिखने का उद्देश्य क्या है? पूरा संक्षेप में ही कि जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पश निरा है और मृतक समान। ठीक है। तो इसमें हमने कल लोगों ने पढ़ा ए गर्ल विथ ए बास्केट में, एक बार फिर सुनते हैं उसके बाद आगे। पाठ में पढ़ा द रेशन ए गर्ल विथ ए बास्केट हैज बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस, who was a judge in the Supreme Court of America. Indian history has been written not only in golden letters but also in black letters. It was the black period of Indian history when Mughal Sultanate Hindustan was divided in between India and Pakistan. After partition, William C. Douglas, who was a judge in the Supreme Court of America, came to India in 1950 so that he might know the feelings of Indians. First of all, the writer came to New Delhi. Living at one place in New Delhi, he was not in position to know the feelings of Indians. It means he had to make a tour all over India. The writer William C. Douglas left New Delhi and started for the Himalayas. By train he had to go to Bareilly. Afterwards, by car he had to go to Rani Khet. In those days, Rani Khet was famous as an old British Army hill station which was situated 6,000 feet above from sea level. Before the hill station, there is 120-mile area which is covered with snow, that is called the Himalayas. The train by which the writer was traveling was a passenger train, because it used to stop at each and every station lying on the way. At every stoppage, opening the door of his compartment, the writer walked the platform so that he might know the feelings of Indians. On his way, the writer saw that the platforms were covered with people, Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers, etc. They all were barefooted. There were neither shoes nor sandals in their feet. They had put on kurta and dhoti of white color. Since the writer was an American, he was in need of a man who could speak English. The writer asked three men in the compartment, but they did not know English. When he asked fourth one, so he had a little knowledge of English. The writer began to talk with him about worldly activities. Afterwards, they discussed the headlines which were published in the newspaper on that day. In this way, talking with the man in the compartment, the writer was trying his best to know the feelings of Indians, and he was checking the behavior of the officers to the public. इतना हम पढ़ चुके थोड़ा। अब आगे बिल्कुल शांत रहो, सुनो ध्यान से। लेखक ने रास्ते में क्या देखा? अब समझो बेटा, यहाँ कानपुर से आपको लखनऊ जाना है, तो एक रास्ता तो सीधे शुक्लागंज नाव होते हुए जाता है, एक दूसरा रास्ता जहाज मोड़ से जाता है। तो रास्ते में क्यूरियासिटी रहती है। पहली बार जब जाते हो तो क्यूरियासिटी रहती है ना कि क्या क्या देखा, वही आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं। आप लेखक दिल्ली से जा रहा है कहाँ? हिमालय की ओर। गाड़ी से जा रहा है कहाँ? रानीखेत। तो रास्ते में वह क्या क्या दिख रहा है, यह हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखो, द रूट माने वह रास्ता
ले थ्रो माने से होकर जाता था वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। भारत के एग्रीकल्चर माने खेती, भारत के खेती के मामले में सबसे धनी इलाकों में से एक इलाके से होकर जा रहा था। क्यों? क्योंकि दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह गंगा नदी का ऊपरी मैदानी भाग था। बहुत उपजाऊ होता है। अरे भाई हरिद्वार वगैरह वाला, यह गंगा नदी का ऊपरी मैदानी भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल, जो समुद्र की सतह से 1000 फीट की ऊंचाई पर क्या है स्थित। अब ये कैसे जाना है सब बता चुके हैं। अरे रेलवे स्टेशन उतरो, पीला बोर्ड जो लगा रहता है उसी के पास जाओ तो समुद्र से वहां तक की ऊंचाई रखी रहती है ना, बता चुके हैं ना। बट ट्रॉपिकल, लेकिन यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था, उमस वाला क्षेत्र था। जैसे अपने यहाँ उमस नहीं होती है। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा का सिल्ट, सिल्ट माने कहते ना सिल्ट पड़ गई है परत, यानी कि नदी में किसकी परत पड़ेगी? बालू की। तो गंगा का बालू जो है वह भूरे रंग का था, ब्राउन। स्वॉलन माने फूली हुई थी, पाठक नहीं फूले थे, गंगा नदी फूली हुई थी। विथ फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से। इट्स ओवरफ्लो, इसके बाढ़ का पानी इन अनडेटिंग, लिख लो, सिंचित कर रहा था, सिंचाई कर रहा था। इन अनडेटिंग माने सिंचित कर रहा था थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, चावल की हजारों एकड़ फसल को सींच रहा था। तो लेखक ने रास्ते में क्या देखा? ध्यान सुनो, जो अंग्रेजी बोलेंगे उसकी हिंदी सुनो ध्यान से। रास्ते में लेखक ने देखा कि यह भारत के खेती के मामले में सबसे धनी इलाकों में से एक इलाका था, जिससे होकर के लेखक यात्रा कर रहा था। क्योंकि यह गंगा नदी का ऊपरी मैदानी भाग था, जो समुद्र की सतह से 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, लेकिन यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। लेखक ने रास्ते में देखा कि गंगा का बालू भूरे रंग का था। संयोग से उन दिनों गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी। अब बताइए गंगा नदी में बाढ़ कब आती है? बरसात में, यानी बरसात का सीजन होगा ना। संयोग से उन दिनों गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी और गंगा नदी के बाढ़ का पानी चावल की हजारों एकड़ फसल को, अरे यार धान वाली, चावल की हजारों एकड़ फसल को सींच रहा था। ध्यान सुनो सुन। On his way, the writer saw that it was one of the richest agriculture areas of India through which he was traveling, because that was the plain of the upper Ganga river, which is situated 1000 feet above from sea level. But it is a tropical area. On his way, the writer saw that the sand of the Ganga was of brown color. By chance in those days, there was flood in the river Ganga, and the flood water of the Ganga was watering. Thousands of acres of rice. एक बार फिर लेखक ने रास्ते में क्या देखा? अरे देखा कि खेती के मामले में सबसे धनी इलाका था ना। गंगा नदी का ऊपरी मैदानी भाग था, गंगा का बालू भूरे रंग का था, गंगा के बाढ़ का पानी चावल की हजारों एकड़ फसल को सींचा। यही तारीख। ध्यान सुनो। On his way, the writer saw that it was one of the richest agricultural areas of India through which he was traveling, because it was the plain of the upper Ganga river, which is situated 1000 feet above from sea level. But it is a tropical area. On his way,
The writer saw that the sand of the Ganga was of brown color. By chance, in those days, there was flood in the river Ganga, and the flood water of the Ganga was watering thousands of acres of rice. अरे यार नहीं समझ आ गया, फिर से एक बार शुरू करें. क्या क्या देखा भाई पुत्र? On his way, the writer saw that it was one of the richest agricultural areas of India through which the writer was traveling, because that was the plain of the upper Ganga river, which is situated 1000 feet above from sea level. But it is a tropical area. It is a tropical area. On his way, the writer saw that the sand of the Ganga was of brown color. By chance, in those days, there was flood in the river Ganga, and the flood water of the Ganga was watering thousands of acres of rice. आगे देखते हैं बेटा, लिखा है टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स. जब लेखक ने अपनी निगाहों को रेलवे लाइन जा रही नहीं से रेलवे लाइन के उत्तरी दिशा की ओर फेंका, तो उसे पता लगा कि उत्तर की ओर क्या थे? जंगल थे. क्या थे? जंगल. ग्रेट एक्सटेंसेस ऑफ ग्रास. डैश करके जंगल कैसे थे? डैश करके दिखा. ग्रेट माने महान, एक्सटेंसेस माने विस्तार, विस्तार ऑफ ग्रास. घास का महान विस्तार था. जहां देखो वहां घास ही घास थी. हायर देन ए मैन्स हेड. जिन घास की ऊंचाई आदमी के खोपड़ी से ज्यादा थी. हायर देन मैन्स हेड एंड अनब्रोकन. घास का सिलसिला कहीं टूटता नहीं था. ब्रोकन माने टूटा हुआ, अनब्रोकन माने जो टूटे ना. घास का सिलसिला कहीं टूटता नहीं था. एक्सेप्ट माने केवल. फॉर एन ओकेजनल माने कहीं कहीं पर. क्लम्प ऑफ ट्रीज. पेड़ों के जहां झुरमुट थे वहां पर घास का सिलसिला टूट जाता था. नोट तो ये जंगल कैसे थे? डैश करके बताया. द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथॉन्स एंड कोबराज. वह जंगल चीतों के, हाथियों के, पाइथॉन्स माने अजगरों के, और कोबरा के घर थे. यानी उन जंगलों में खतरनाक जानवर रहते थे. ध्यान सुनो. रास्ते में जब लेखक ने अपनी निगाहों को रेलवे लाइन के उत्तरी दिशा की ओर फेंका, तो आप सोच रहे हो आंखें निकाल निकाल फेंक दिया? नहीं, उत्तर की ओर देखा. रास्ते में जब लेखक ने अपनी निगाहों को रेलवे लाइन के उत्तरी दिशा की ओर फेंका, तो उसे पता लगा कि उत्तर की ओर क्या थे? जंगल थे. उन जंगलों में घास थी. जहां देखो वहां घास ही घास दिखाई देती थी. घास का महान विस्तार था. उस घास की ऊंचाई आदमी के खोपड़ी से कम नहीं थी. घास का सिलसिला कहीं टूटता नहीं था. घास का सिलसिला केवल वहां टूटता था जहां पर पेड़ों के क्या थे? झुरमुट थे. जैसा कि हम जानते हैं पेड़ों के नीचे लंबी घास नहीं होती. अभी क्या होता है? उन घासों की ऊंचाई आदमी की खोपड़ी से कम नहीं थी. यानी जितने पुरसा पुरसा भर की ऊंचाई थी. लेकिन जहां पेड़ के झुरमुट हो गए वहां घास होगी नहीं. अगर होगी छोटी छोटी होगी, बड़ी घास नहीं उगती. उन जंगलों में खतरनाक जानवर रहते थे. एलिफेंट, टाइगर, पाइथॉन और कोबरा जैसे खतरनाक जानवर उन जंगलों में रहते थे. तो ध्यान सुनो बेटा, शुरू करें. When the writer William C. Douglas threw his eyes towards the north side of the railway, so he came to know that there were a number of forests. In those forests there was grass. The height of grass was not less than that of man's head,
Everywhere there was the routine of grass. The routine of grass was not broken. The routine of grass was broken where the clump of trees was. As we know, grass does not grow. Long grass does not go under tree. Now, in those forests, dangerous animals like tigers, pythons, cobras, and elephants lived. Yani those forests were the houses of the dangerous animals like tigers, pythons, cobras, and elephants. कुछ समझ? एक बार प्रश्न हो रहा। अरे यार बहुत सरल। उत्तर की ओर निगाहों को फेंका तो उसमें घासें थी, घास हर जगह। आदमी की खोपड़ी से, आदमी के सर की ऊंचाई से कम नहीं थी, यानी जहां देखो वहां घास ही घास थी। घास का सिलसिला कहीं टूटता नहीं था। घास का सिलसिला केवल वहां टूटता था जहां पर पेड़ों के क्या थे, झुरमुट थे। जैसा कि हम जानते हैं लंबी घास पेड़ों के नीचे नहीं उगती। खतरनाक जानवर उसमें निवास करते थे। बोला ध्यान सुनो। When the writer William C. Douglas threw his eyes towards the north side of the railway, so he came to know that there were a number of forests. In those forests there was grass. The height of grass was not less than that of man's head. Everywhere there was a routine of grass. The routine of grass was not broken, but the routine of grass was broken where the clump of trees was. As we know, long grass does not grow under trees. Those forests were the houses of dangerous animals like tigers, pythons, cobras, and elephants. It means those forests were dangerous animals like tigers, pythons, cobras, and elephants lived in those forests. उन जंगलों में इस प्रकार के खतरनाक जानवर रहते थे। आया सुनो एक बार फिर ध्यान सुनो। When the writer William C. Douglas threw his eyes towards the north side of the railway, so he came to know that there were a number of forests. In those forests there was grass. The height of grass was not less than that of man's head. पुरसा पर घास थी। The routine of grass was not broken, but the routine of grass was broken where the clump of trees was. As we know, long grass does not grow under trees. In those forests, dangerous animals like tigers, pythons, cobras, and elephants lived. It means those forests were the houses of dangerous animals like tigers, pythons, cobras, and elephants. हम बता रहे हैं बेटा, समझ आ रहा है? एक एक चीज क्लियर हो रही है। दूसरी चीज आपको ध्यान रख कि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप रटे ना, आपके दिमाग में घर कर जाए कि यह चीज इस पाठ में है। ठीक है, तो आपसे भी कुछ सहयोग चाहते हैं। आप हमारे एपिसोड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें, हमारा उद्देश्य है। क्योंकि आपने एक सुना था, व्यये कृते नित्यम, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यह विद्याधन बेटा जितने लोगों के पास पहुंच सके ना बेटा, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, जितना इसका व्यय होगा उतने इसका विकास हो। यह ऐसा धन है जो कभी खर्च नहीं होता। तो आप किसी भी तरीके से इसको व्यय करने की कोशिश करो अपने माध्यम से। हम तो आपको बताए रहे बेटा, जितना ज्यादा से ज्यादा इसका विस्तार होगा उतने समाज को फायदा होगा, देश को फायदा होगा, परिवार को फायदा होगा। ठीक है, समझाता है? आप आगे देखो, किताब देखिए। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैटलैंड। लेखक ने रास्ते में देखा
कि प्रत्येक जगह फ्लैट माने समतल। अरे कहते ना फ्लैट पड़े हैं, फ्लैट माने समतल, लैंड माने जमीन। प्रत्येक जगह समतल जमीन थी, यानी कि जंगल था तो ऊबड़ खाबड़ नहीं था, समतल जमीन थी प्रत्येक जगह। और वह जमीन कैसी थी? रनिंग टू द हॉरिजन। रनिंग माने दौड़ रही थी, टू द हॉरिजन माने क्षितिज की ओर। वह समतल जमीन, क्षितिज माने आकाश, वह समतल जमीन आकाश की ओर दौड़ रही थी। ठीक है, किधर की ओर दौड़ रहे थे? आकाश। ये समझ नहीं आया, समझाते हुए आप कहीं पे हो और देखो कि बिल्कुल निर्जन स्थान है, पेड़ पौधे घर द्वार कुछ नहीं है, तो आप ऐसी निगाह अपनी दौड़ाओ तो दूर तक देखोगे तो लगेगा कि यह पृथ्वी आकाश को छू रही। अरे यार ज्यादा दूर की बात नहीं करें, यहीं चले जाओ बांधा की ओर, 10-10 किलोमीटर तक घरे द्वार नहीं है, तो वहां शाम के समय आप कहीं मैदानी इलाके में खड़े हो जाओ, जमीन समतल हो, पेड़ पौधे घर द्वार न हो, तो आपको लगेगा, दूर तक देखोगे तो लगेगा कि अब पृथ्वी आकाश को क्या करे? छू रही। तो वही यहां लेखक लिख रहा, प्रत्येक जगह समतल जमीन थी, वह समतल जमीन आकाश की ओर दौड़ रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वह समतल जमीन आकाश की चोटी को छूने की कोशिश कर रही। लेकिन बट माने लेकिन, बताया ना काम बिगाड़े तीन घर मगर, लेकिन बट डॉटेड माने अवरुद्ध हो जाता था। क्या हो जाता? पृथ्वी का आकाश की ओर दौड़ना डॉटेड हो जाता था, मतलब अवरुद्ध हो जाता था। हियर एंड देयर माने कहीं कहीं पर, फ्रेज है हियर एंड देयर। बाय सेक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद के पेड़ के। अरे बरगद का पेड़ नहीं जानते? बरगदाही सुने होगे, तो बरगद का पेड़ औरतें सुनोगे घूमती है ना उसी चारों, तो बरगदाही नहीं, बरगद का पेड़ ना बेटा। आर बाई रोज आप पाकड़ ट्रीज, रोज माने कतार, पाकड़ पेड़, पाकड़ पेड़ की कतारों से अथवा पवित्र बरगद के पेड़ों से कहीं कहीं पर पृथ्वी का क्षितिज की ओर दौड़ना अवरुद्ध हो जाता था। अब गाड़ी जा रहा, सब जगह समतल जमीन है, जहां जहां बरगद का पेड़ विशालकाय होता है तो लगे कि पृथ्वी आकाश उसी बरगद के पेड़ पर टिका हुआ है ना बेटा। तो कह रहा है कि पृथ्वी का क्षितिज की ओर दौड़ना, आकाश की ओर दौड़ना कहीं कहीं पर अवरुद्ध हो जाता था, जहां पवित्र बरगद के पेड़ थे और पाकड़ पेड़ की क्या थी? कतारें थी। अब लेखक अमेरिकन था, वह कहा जाने बरगदाही बरगद का पेड़ और पाकड़ के पेड़ क्या होता है, तो वह यहाँ के पेड़ की तुलना अपने देश के पेड़ से कराता है। क्या कहता है? शेप्ड, उन पेड़ों का आकार, शेप माने आकार, लाइक आर्म्स, उन पेड़ों का आकार देवदार पेड़ों के आकार की तरह था। कैसा था? अपने यहाँ उसके उनके यहाँ क्या अंश पाया जाता है? उन पेड़ों का आकार देवदार पेड़ों के आकार की तरह था। एंड हैविंग, वह रखते थे, थिक माने मजबूत, क्रिस्ट माने ऐंठे हुए मुड़े हुए, ट्रंक माने तने। अरे ट्रंक्स माने सुन होता है कि हाँ पेड़ का तना जो है क्या मान लिया गया? सुन। यानी उन पेड़ों का आकार देवदार पेड़ों के आकार की तरह था, जिनके तने मजबूत थे और ऐंठे हुए थे। अरे यार ऐंठे हुए मतलब ना, पुराना बरगद का पेड़ देखो, देखते ना जटा जूट रखा है, मार खा रहता है, मार ऊपर से झाल लटकती रहती है, वो चीज कर। हॉट ह्यूमिड एयर, हॉट माने गर्म, ह्यूमिड माने आर्द्र यानी उमस वाली। हॉट और ह्यूमिड मतलब आर्द्रता, गर्म और आर्द्र दोनों मिला दो क्या हो जाएगा? उमस। उमस वाली हवा वाज मूविंग इन, मूविंग माने गति कर रही थी, इन माने अंदर। कहां अंदर? डिब्बे के अंदर। फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिमी कोने से। दक्षिणी पश्चिमी कोने, देखो दक्षिण पश्चिम का ये कोना हुआ,
दक्षिणी पश्चिमी कोने से गर्म और आर्द्र हवा उस डिब्बे में प्रवेश कर रही थी जिस डिब्बे में लेखक महोदय यात्रा कर रहे थे। ये लिखा, ध्यान सुनो बेटा, शुरू करें। लेखक ने रास्ते में देखा कि प्रत्येक जगह समतल जमीन थी, सपाट, बिल्कुल प्रत्येक जगह समतल जमीन थी। वह समतल जमीन आकाश की ओर दौड़ रही थी। लेखक को ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वह समतल जमीन आकाश की चोटी को छूने की कोशिश कर रही हो। लेकिन पृथ्वी का आकाश की ओर दौड़ना कहीं कहीं पर अवरुद्ध हो जाता था, जहां पवित्र बरगद के पेड़ थे और पाकड़ पेड़ की क्या थी बता देते। लेखक अमेरिकन, वह बरगद का पेड़ और पाकड़ का पेड़ नहीं जानता था, इसलिए वह यहाँ के पेड़ की तुलना अपने देश के पेड़ से कराता है। उसका कहना है उन पेड़ों का आकार देवदार पेड़ों के आकार की तरह था, क्योंकि उनके तने मजबूत थे और ऐंठे हुए थे। लेखक ने रास्ते में महसूस किया कि दक्षिणी पश्चिमी कोने से गर्म और आर्द्र हवा बह रही थी। गर्म और आर्द्र हवा दक्षिणी पश्चिमी कोने से उस डिब्बे में प्रवेश कर रही थी जिससे लेखक यात्रा कर रहा था। हाँ, एक चीज हम बताना चाहते हैं आपको, कुछ नए लड़के इसमें जुड़ रहे हैं रोज दिन प्रतिदिन। उन नए शिष्यों को गुरु सलाह देता है कि जो हम पीछे पढ़ा चुके से एक पार्ट पढ़ा चुके करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पोएट्री में, उसको आप अवश्य पढ़ें। नए लड़कों की सलाह है, निश्चित है कि आपको समझ आएगा। और जो सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेनेशन, इसके लिए आप चिंता न करो, ये सब पाठक की जिम्मेदारी है। केवल आप अभी सुनते रहो और समझते रहो पाठक क्या करें, ठीक है। आप देख रहे हो कि एक एक स्टैंजा बिल्कुल क्लियर करके हम चल रहे हैं, इसलिए कि नहीं कि हमको कुकुर काटे, एक ही बार हम बता के आगे बढ़ जाए, इसलिए बता रहे हैं बेटा, जिससे कि बिना किसी के बताए हुए कोई भी क्वेश्चन, शॉर्ट हो लॉन्ग हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप बिना किसी के गाइड के हुए खुद अपने मन से लैंग्वेज बना करके लिख सकें। वो हम खैर जो आपको वाजिब है वो सब हम लिख के सब आपको बताएंगे बाद में, लेकिन अभी कुछ तो हो जाने दो कोर्स। तो जो नए लड़के हैं उनको ये सलाह देते हैं कि पीछे वाला पढ़ते हुए आप आगे बढ़ें और ग्रामर का पीरियड कभी न छोड़ें, क्योंकि जितना हम पढ़ा रहे हैं ग्रामर वही हम बोलते भी हैं बेटा, उसी का यहाँ पर क्या होता है, अभ्यास होता है, ठीक है। तो ध्यान सुनो बेटा, हमने आपको बताया ऑन हिज वे, देखो ऑन हिज वे द राइटर सा दैट एवरीवेयर देयर वाज फ्लैट लैंड, दैट फ्लैट लैंड वाज रनिंग टुवर्ड्स द स्काई। इट seemed to the writer as though the flat land were trying its best to touch the top of the sky. But the running of the flat land towards the sky was checked by the sacred banyan tree and the rose of pakar trees. Since the writer was an American, he did not know the banyan tree and the pakar tree. So he compares those trees with that of his own country. According to the writer William C. Douglas, the shape of those trees was like that of elms because their stems were strong and twisted. On his way, the writer realized that hot and humid wind was blowing from the southwest. Hot and humid wind was getting intense into the compartment of the train by which the writer was traveling. कुछ समय एक बार फिर हमने आपको बताया, लेखक ने रास्ते में देखा प्रत्येक जगह समतल जमीन थी। वह समतल जमीन आकाश की ओर दौड़ रही थी। लेखक को ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वह समतल जमीन आकाश की चोटी को छूने की कोशिश कर रही हो, लेकिन पृथ्वी का
आकाश की ओर दौड़ना कहीं कहीं पर अवरुद्ध हो जाता था, जहां पवित्र बरगद के पेड़ थे और पाकड़ पेड़ की क्या थी, कतारें थी। चूंकि लेखक एक अमेरिकन था, वह पाकड़ का पेड़ और बरगद का पेड़ नहीं जानता था, इसलिए वह यहाँ के पेड़ की तुलना अपने देश के पेड़ से कराता है। उसका कहना है कि उन पेड़ों का आकार देवदार पेड़ों के आकार की तरह था, क्योंकि उनके तने मजबूत थे और ऐंठे हुए थे। लेखक ने रास्ते में महसूस किया कि दक्षिणी पश्चिमी कोने से गर्म और आर्द्र हवा बह रही थी। गर्म और आर्द्र हवा दक्षिणी पश्चिमी कोने से गाड़ी के उस डिब्बे में प्रवेश कर रही थी जिसमें लेखक यात्रा कर रहा था। On his way, the writer saw that everywhere there was flat land. That flat land was turning towards the sky. It seemed to the writer, as though the flat land were trying its best to touch the top of the sky. But the running of the flat land towards the sky was checked by the sacred banyan tree as well as the rosa packard trees. Since the writer was an American, he did not know about the banyan tree and the packard tree. So he compares those trees to that of his own country. According to the writer William C. Douglas, the shape of those trees was like that of elms because their stems were strong and twisted. Their stems were strong and twisted. On his way, the writer realized that hot and humid wind was blowing from the southwest. Hot and humid wind was getting intense into the compartment of the train by which the writer was traveling. कुछ समय पक्का? कई बार हुआ? 2 बार, एक बार फिर सुनो जिससे पक्का हो जाए। पहली बार में जो सबसे अच्छा विद्यार्थी है उसको समझ आ गया होगा, दूसरी बार में मीडियम क्लास और तीसरी बार जो पाठक की कैटेगरी वाले हैं, जो सबसे कमजोर हैं, उनको भी आने लगता है। एक बार फिर सुनते हैं। हमने आपको बताया, on his way the writer saw that everywhere there was flat land. That flat land was running towards the sky. It seemed to the writer as though the flat land were trying its best to touch the top of the sky. But the running of the flat land towards the sky was checked by the sacred banyan tree as well as the rosa packard trees. Since the writer was an American, he did not know about the banyan tree and the packard tree. So he compares those trees with that of his own country. According to the writer William C. Douglas, the shape of those trees was like that of elms because their stems were strong and twisted. Strong and twisted. Twist माने ऐसे। On his way, the writer realized that hot and humid wind was blowing from the southwest. It means hot and humid wind was getting intense into the compartment of the train by which the writer was traveling. पक्का? कुछ समझ आया? कसम से? वेरी गुड। बाकी